کے آخر میں آخری سلائیڈز میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی، جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a National Action Plan, there is an agreed consensus document of National Action Plan جس کے 14 نکات ہیں جس میں تمام political parties over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. Now these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے, آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے, آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے اسمگلنگ بھی ہے جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں, آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی, مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کے رجسٹریشن کے نظام کو, آپ نے ایک کریکولم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس پہ. سو یس, گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. نو ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ گڈ گورننس, that is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں I think 1972 کا سینسس تھا, if I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت, 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو وی ہیو ٹو سی از اٹ سرونگ گڈ گورننس. بٹ دیٹ ڈبیٹ ہیز ٹو بی اسینشلی ڈن بائی دی پالیٹیشنس, بائی دوز ان پاور, ایون دوز ہو ہیو بین پریویسلی ان پاور, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people. کوئٹہ میں المناک سانحہ, کوئلے کی کان میں گیس دھماکہ, 34 زندگیاں نکل گیا, 30 لاشیں ورثہ کے حوالے. اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تھا. متاثرہ کان میں پھنسے 2 مزدوروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. 8 مزدوروں کو زندہ نکالیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس, زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس, رپورٹ طلب. غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی ہوگی. سرفراز بگٹی کی وارننگ. جاں بحق کانکنوں کے لواحقین کو 5 لاکھ دینے کا اعلان.
ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता, 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने के मिशन पर थे। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोहपेमा भी टीम का हिस्सा थे। चीन की वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, चीनी कोहपेमाओं को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। जख्मों से चूर चूर, गजा में अमन की उम्मीद फिर रोशन। गजा पीस बोट का हमास और दीगर गिरोहों के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा तय, अमेरिकी सदर की तस्दीक। कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज वापस जाएगी। गजा का इंतजाम नई फलस्तीनी हुकूमत की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मुनज़्ज़म और मरहला वार तरीके से नाफिज किया जाएगा। गजा की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फलस्तीनी पुलिस के साथ काम करेगी। हथियारों का मामला इसराइली इनखला और तामीर नौ से मुंसलिक। इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल होगा। मुज़ाकराती रुकन गाजी अम्माद ने साफ साफ बता दिया, कहा असलहे के मामले में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदार होगी। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। मिस्र, कतर और तुर्की की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक हथियार बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के हवाले किए जाएंगे। मुआहदे के तहत गजा के कुछ इलाकों को गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। गैर मुसल्लह होने का अमल 200 से 300 दिन ले सकता है। तकरीबन 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैयारी जारी है। दहशतगर्द भारत कश्मीरियों के साथ फलस्तीनियों का भी कातिल। भारत मुसलसल इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है। असलहे की 2500 से ज्यादा खेपें भेजी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के मकार चेहरे से नकाब उतार दिया। आलमी तंजीम के मुताबिक मुतादिद असलहा सप्लायर कंपनीज बराह रास्त भारतीय रियासत की मिल्कियत है। इसराइल को असलहे की तरसील रोकने का मुतालबा। रियाद में बैनुल अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। बानी रुकन ममालिका बहरी सलामती के लिए मुश्तरका दिफाई ताउन पर इत्तफ़ाक़। बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान जारी। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। उर्दन में अमरीका की अजरिक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी। कैशम में शहरी घरों पर हमला। मेनाब और दीगर वाकयात का तसलसल। अमरीका रोज एक नए जुर्म से अपने हाथ आलूदा कर रहा है, कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की वार्निंग। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल नए सूबे और नई क़यादत। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, जब तक सिस्टम रीसेट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो निज़ाम उलट देंगे। सिर्फ लैपटॉप देकर इन्हें खुश नहीं किया जा सकता। नई नस्ल 2 या 4 हज़ार रुपये नहीं मांग रही, इसको मौक़े देना होंगे। एक शख्स दिन रात दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम कर रहा है। वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता ताकि यही निज़ाम ठीक हो। सियासी जमातों को बैठकर नए सूबों समेत तमाम मसाइल पर बात करना होगी। मामला अवाम तक ले जाना होगा। मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें गौर तलब और वक्त की जरूरत। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में तकसीम किया जाए। अगर नए सूबे बन जाएं, मसाइल दहलीज पर हल हो जाएं, तो आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। विफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। कहा, कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद। वक्त आ गया है तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। सियासत करनी है तो बैड गवर्नेंस पर कर लें, शोहदा पर नहीं। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत की ज़रूरत है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया, इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं।
आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इतवार को मैदान लगेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। तशद्दुद के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। आजाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। फिरोजवाला में सैलाबी पानी से तबाही, रचना टाउन में घर जजीरों में तब्दील, लोग छतों पर महसूस। खुराक नायाब, बीमारियां फैलने का खतरा। राना टाउन, पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल जूं की तूं। बरसों की जमा पूंजी पानी में डूब गई, कोई पूछने वाला नहीं, मुतासरीन की दुहाई। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर, चौथे रोज भी भरपूर कवरेज। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, मरी में 3 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश, लंडी कोतल में बरसाती नाले बिफर गए। पाक अगवान शहरा पानी पानी, मंगोरा समेत कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। जहलम, अटक, मियावाली और फतेह जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कराची में एक और आला तालीम याफ्ता नौजवान लाकानूनियत की भीड़ चढ़ गया। इकलौता सहारा छीन जाने पर वालिदैन की दुनिया उजड़ गई। मीर रजा को किसने मारा, क्यों मारा, अब तक कोई सुराग न मिल सका। तहकीकात में मकतूल की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। तफ्तीशी हुकाम को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मीर रजा को जाए वकुआ के करीब उतारा। मीर रजा एक और गाड़ी में सवार हुआ जिसमें एक शख्स मौजूद था। राइड हिस्ट्री से केस की तफ्तीश में मदद मिलने की तवक्को। मीर रजा के खून का हिसाब कौन देगा। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। MKM और जमात इस्लामी का कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों की कातिल मां निकली। मुलव्विस, केमिकल शॉप का मालिक और राइडर भी गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक अमेरिकन नेशनल खातून ज़हनी मरीजा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी पोटेशियम साइनाइड की तस्दीक। कराची में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का नाम पर फ्रॉड का इंकशाफ। सरमायाकारी पर फ्रॉडियों की जानिब से 5 लाख रुपए फी हफ्ता मुनाफे की पेशकश। इदारे ने AI प्लेटफॉर्म की कोई स्कीम लॉन्च नहीं की। आरिफ हबीब लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। फैसलाबाद में कनाडा भिजवाने के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड। 2 भाइयों की कंसल्टेंट कंपनी बनाकर शहरियों से लूटमार। गिरफ्तार मुल्जिमान से शहरियों के पासपोर्ट, लैपटॉप और दीगर डेटा बरामद। FIA ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अहम इंकशाफात मुतवक्किल।